Hello everyone. Today we will be discussing the next topic from First Aid Pathology, which is inflammation. This lecture will also be bilingual. So, what is inflammation? It is a response to eliminate the initial cause of cell injury and to remove the necrotic cells and initiate the tissue repair. It is usually acute and chronic. The response itself can also be harmful if it is excessive, inappropriate, or prolonged. If excessive, the example is septic shock. If the inflammatory response is prolonged, it can be example persistent infections like TB. And if the inflammatory response is inappropriate, it can be autoimmune disease such as SLE. So basically, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एक रिस्पॉन्स होता है जो कि कोई भी सेल इंजरी का इनिशियल कॉज को एलिमिनेट करने के लिए होता है. इसमें नेक्रोटिक सेल्स रिमूव होती हैं जो कि ओरिजिनल इंसल्ट की वजह से आई थी और टिश्यू का रिपेयर भी इनिशिएट होता है. ये एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइडेड है और ये रिस्पॉन्स कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है होस्ट के लिए अगर वो रिएक्शन एक्सेसिव है. एग्जाम्पल सेप्टिक शॉक में. अगर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोलॉन्ज्ड है जैसे कि परसिस्टेंट इन्फेक्शंस जैसे ट्यूबरक्लोसिस टीबी. अगर वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इनअप्रोप्रिएट है जैसे कि एसएलई जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है. नेक्स्ट, कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. So the 5 signs are rubor, calor, tumor, dolor, function, lesa. In rubor, there is redness, and calor means warmth. This occurs because of vasodilation, which is because of the relaxation of arteriolar smooth muscles, which increases the blood flow. This is mediated by histamine, prostaglandin, bradykinin, NO, nitric oxide. Then tumor means swelling. This is usually because of endothelial contraction. Example is tissue damage. In this, there is increased vascular permeability that causes the protein-rich fluid from postcapillary venules into interstitial space. This is known as exudate. And second, increased interstitial oncotic pressure. This endothelial cell contraction is mediated by leukotrienes such as C4, D4, E4, histamine, serotonin, bradykinin. Next is dolor, which is pain. This is because of sensitization of sensory nerve endings. This is mediated by bradykinin, PGE2, and histamine. And the last is function lesa. This is loss of function and it occurs due to inflammation which impairs the function. For example, inability to make fist due to hand cellulitis. So basically हमने इसमें पढ़ा कि कार्डिनल साइंस इन्फ्लेमेशन के होते हैं कुछ और उनके मैकेनिज्म्स. फर्स्ट होता है रूबर, देन कैलर, ट्यूमर, डॉलर, फंक्शन लेसा. रूबर मतलब रेडनेस और कैलर मतलब वार्मथ. रूबर और कैलर वेजोडाइलेशन की वजह से होता है जब आर्टेरियोलर स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होता है. इसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और ये यूजुअली हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रैडिकाइनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है. ट्यूमर मीन्स स्वेलिंग. ये एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर डिस्ट्रप्शन की वजह से होता है जैसे कि टिश्यू का जब डैमेज होता है तब. इसमें वैस्कुलर परमिएबिलिटी होती है इंक्रीज और इसके बाद प्रोटीन रिच फ्लूइड पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सूडेट. और सेकेंड चीज़, इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है. एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन ल्यूकोट्राइन्स C4, D4, E4, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ब्रैडिकाइनिन के थ्रू मीडिएट होता है. डॉलर मीन्स पेन. इन्फ्लेमेशन में पेन सेंसरी नर्व एंडिंग्स के सेंसिटाइजेशन की वजह से इंक्रीज होता है और ये ब्रैडिकाइनिन, PGE2 और हिस्टामिन के थ्रू आता है. फंक्शन लेजा लॉस ऑफ फंक्शन होता है और ये यूजुअली इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. जैसे कि एग्जाम्पल, पर्सन फिस्ट नहीं बना पाता, पर्सन अपनी मुट्ठी बंद नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ हैंड सेल्यूलाइटिस. Now we will discuss systemic manifestations, which is acute phase reactants. In this, there are 3 manifestations: fever, leukocytosis, and increased plasma acute phase reactants. So first, fever. We can see that there are 2 E's in the fever. From this, we can learn the 2 E's which are there in PGE2. So what happens is that pyrogenes, example LPS, induces macrophages to release interleukin-1 and TNF. This increases the COX activity in perivascular cells of anterior hypothalamus, which further causes
the increase of PGE2, and then increased temperature set point. Then in leukocytosis, there is increased WBC count. It depends what type of inciting agent or injury it is. For example, in bacterial infections, the WBC that increases is neutrophils. Then we have the increased plasma acute phase reactants. In this, the serum concentration changes. This is because of acute or chronic inflammation. It is produced by liver and induced by interleukin 6. सो बेसिकली सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस इन्फ्लेमेशन में 3 होती हैं: फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस और प्लाज्मा एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स का इंक्रीज होना. जो फीवर है ये पायरोजीन्स की वजह से होता है, जैसे कि LPS, जो कि मैक्रोफेजेस को इंड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन 1 और TNF रिलीज करने के लिए. इसके बाद कॉक्स एक्टिविटी इंक्रीज होती है पेरीवैस्कुलर सेल्स ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस में, जो कि फर्दर PGE2 को इंक्रीज करती है और इसकी वजह से टेम्परेचर सेट पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. PGE2 टेम्परेचर सेट पॉइंट को इंक्रीज करता है, मतलब फीवर कराता है, मतलब 2E's, एंड फीवर में भी 2E's होते हैं. सो वी कैन लर्न इट फ्रॉम PGE2 एंड 2E's इन फीवर. देन आते हैं ल्यूकोसाइटोसिस पे. इसमें WBC काउंट इंक्रीज होता है. डिपेंड करता है कौन सा इंसाइटिंग एजेंट और इंजरी है. एग्जाम्पल, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं. प्लाज्मा एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं. ये सीरम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है इसमें, और ये यूजुअली एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में ही होते हैं. ये लिवर से प्रोड्यूस होते हैं एंड इंटरल्यूकिन 6 से इंड्यूस होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स. Acute phase reactants are of two types: upregulated or downregulated. The upregulative or positive acute phase reactants are C-reactive protein, ferritin, fibrinogen, haptoglobin, hepcidin, procalcitonin, and serum amyloid A. C-reactive protein is opsonin. This facilitates phagocytosis, and it is measured clinically as non-specific sign of ongoing inflammation. Then ferritin, it binds and then sequesters iron to inhibit microbial iron scavenging. Fibrinogen is a coagulation factor. This promotes endothelial repair and then correlates with ESR. Haptoglobin binds the extracellular hemoglobin, which protects against the oxidative stress. Then there is hepcidin, which decreases the iron absorption by degrading ferroportin. This decreases the iron release. And then there is anemia of chronic disease. Procalcitonin, this increases in bacterial infections. And serum amyloid A, if the elevation is prolonged, it can lead to secondary amyloidosis. Some downregulated negative acute phase reactants are albumin, transferrin, transthyretin. Albumin reduction conserves amino acids for positive reactants. Transferrin is internalized by macrophages to sequester iron. And transthyretin, also known as prealbumin, also conserves amino acids for positive reactants. So basically acute phase reactants दो तरीके के होते हैं, positive and negative. Positive means upregulated and negative means downregulated. Upregulated acute phase reactants में आते हैं C-reactive protein, ferritin, fibrinogen, haptoglobin, hepcidin, procalcitonin and serum amyloid A. C-reactive protein है opsonin, और ये कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करता है और फेगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करता है. ये क्लिनिकली मेजर होता है एज अ नॉन स्पेसिफिक साइन ऑफ ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ये और भी कंडीशंस में अपरेगुलेट हो सकता है. देन फेरिटिन सेक्वेस्टर करता है आयरन को, मतलब आयरन को हाइड करता है माइक्रोब से, और आयरन का माइक्रोबियल आयरन स्कैवेंजिंग को इनिबिट करता है, आयरन से बाइंड करता है. देन फिब्रिनोजन जो होता है वो एक कोएगुलेशन फैक्टर है. ये एंडोथीलियल रिपेयर को प्रमोट करता है और ESR से कोरिलेट भी होता है. हैप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है. हेप्सिडिन आयरन एब्जॉर्प्शन और आयरन रिलीज को डिक्रीज करता है.
आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है फेरोप्रोटीन को डिग्रेड करके, और आयरन का रिलीज डिक्रीज करता है मैक्रोफेजेस में से, और इसकी वजह से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज हो जाता है इन्फ्लेमेशन के बाद। प्रोकैल्सिटोनिन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इंक्रीज हो जाता है। और सीरम अमाइलॉइड ए जो है अगर वो बहुत टाइम तक एलिवेटेड रहा तो ये सेकेंडरी अमाइलोडोसिस कॉज करता है। डाउन रेगुलेटेड या नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स हैं एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन एंड ट्रांसथायरेटिन। एल्ब्यूमिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है ताकि अमाइनो एसिड्स को कंजर्व कर सके पॉजिटिव रिएक्टेंट्स के लिए। ट्रांसफेरिन डिक्रीज होता है, ये यूजुअली मैक्रोफेजेस की वजह से डिक्रीज होता है ताकि वो आयरन को सिक्वेस्टर कर सके, मतलब आयरन को माइक्रोब से बचा सके। और ट्रांसथायरेटिन जो है इसको हम प्री एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, और इसके रिडक्शन से भी अमाइनो एसिड्स कंजर्व होते हैं पॉजिटिव रिएक्टेंट्स के लिए।